Hello, good morning. Today we start with very important chapter in biology, that is life processes. Before we start the concept, very useful concept I say. First of all, we have to understand two important points, that what is life and what is processes. If I say life, it means something which is dealing with live, I mean to say living organism, and this part involves processes. Certain processes are that which are actually involved in any living organism. This is all about the detail of title, life processes. Life means live means living, and processes means what? Some processes which are involved in the, what I can say, any living organism. चलो शुरुआत करते हैं. First of all, as far as textbook is concerned, they have given in very complicated way. We have to understand the concept which are given in the textbook, same concept, but whatever we actually want to learn, I am presenting that particular part. Number one, first of all, let we decide which are the different criteria. How can we say that something is live and something is dead? उसके क्राइटेरिया डिसाइड करना है. ये टेक्स्ट बुक में सबसे पहले दिया है. चलो, तो when I talk about who is live and who is not alive, how can we judge? You can see, for an example, the movement of fish, the movement of bird. If bird is flying, it means you can see some movements which are easily visible. In fact, we the humans are walking, so definitely we are considered as a live. Fine, we are considered as a living organism. But the question arises here that some movements are not easily visible, like molecular movement. Whenever some molecules, I mean to say the movement which is at molecular level. For an example, if any living organism, bacteria, virus, they are not visible, we cannot see them by the naked eyes, but still they are alive because a very small movement is there inside the virus body or inside the bacterial body. Usually virus are not said to be live or not said to be dead. Virus is that living organism कि वो as such तो dead ही है, but if virus is having contact with any living organism, now it start the reproduction. Okay, so bacteria are live because they are not visible. We cannot see the visible movement of bacteria, but some movements are involved. These movements are called as a molecular movements. उसको हम क्या कहेंगे? Molecular movements. It means what? A movement in cell, single cell and tissue is necessary for all life processes. So there are mainly two criteria. Number one, if the movements are visible, this is the first criteria. How can we differentiate whether something is alive or not? So this is first criteria, that is some movements which are visible, some movements are easily visible, and second, which movements are we talking about? Some movements which are not visible, like molecular movement. So these are the criteria by which we can decide whether something is alive or dead. Because ये पूरे चैप्टर में हम दो चीज डिस्कस करने वाले हैं. लाइफ मीन्स लिविंग, processes, certain processes which are involved, we will discuss.
Okay, so criteria for life is now very clear. Next, now let we discuss life processes. ये क्या है भाई? चलो उनको डिफाइन करते हैं. सबसे पहले life processes are those basic fundamental processes in any living organism. कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म है which are necessary for maintaining their life. उनकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज अ लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ के बारे में मीनिंग इज वेरी क्लियर नाउ, बट विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर वी टॉकिंग अबाउट? तो नंबर 1, न्यूट्रिशन. Without nutrition it is not possible to live any living organism. Respiration, we will discuss the whole in one lecture. Transportation, very important part, and excretion. ये 4 प्रोसेस हम डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, एंड नंबर 4 व्हाट यू कैन से एक्सक्रीशन. ये 4 प्रोसेस के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है चैप्टर में. चलो पहले ब्रीफली डिफाइन करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इट मीन्स व्हाट व्हेनेवर एनी लाइव ऑर्गेनिज्म इज देयर, उनको लाइव रहने के लिए उनकी बॉडी के सेल को एनर्जी चाहिए. एनर्जी, वो एनर्जी कहां से मिलेगी? Of course, he or she or it has to take some food molecules. Fine, food molecules उनकी बॉडी में गए तो that is the process called as a nutrition. It is the process of taking food by an organism and how those food molecules are utilized by the body for life processes. वो फूड मॉलिक्यूल्स कैसे यूटिलाइज होते? फाइन, वी आर ईटिंग सो मेनी फूड मॉलिक्यूल्स लाइक मिल्क, रोटी, सब्जी, so and so, but at the end what will happen? Some nutrients are obtained from those food molecules, say carbohydrate, protein, vitamin, minerals, lipids and so and so. So ये पूरी प्रोसेस हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दैट इज न्यूट्रिशन. सेकेंड, वो न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेस जब खत्म होती है, इट मीन्स नाउ विच एवर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब इन द बॉडी. अपनी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स आए वो डायरेक्टली कहाँ आते हैं? ब्लड में. अब ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स आ गए, उसके बाद किसका रोल है भाई? रेस्पिरेशन का. इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न. ये जो फूड मॉलिक्यूल्स है, फूड मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज, फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स है, उनका क्या होता है? बर्निंग होता है. कहाँ? सेल में. ओके, बट वो बर्निंग के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन. वो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तभी तो अंदर चला जाता है. फाइन. सो सिंपली इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं वो और सांस निकालते हैं वो, बट वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन विल गो इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स. नाउ लंग्स इज हैविंग कॉन्टेक्ट विथ ब्लड. वो ऑक्सीजन सीधा कहाँ चला जाता है? ब्लड में. और ब्लड में व्हाट द ऑक्सीजन विल डू? फूड मॉलिक्यूल्स का बर्निंग करते हैं. ओके, और उसमें से क्या मिलता है? एनर्जी. फिर वो एनर्जी मिल तो गई, बट इट इज नेसेसरी कि सच एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैज टू बी प्रोवाइडेड और हैज टू बी सप्लाइड बाय ईच एंड एवरी सेल. तो बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की. किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की. इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, वाटर and waste products are carried from one part of the body to the other part. It means what? बॉडी में एक जगह से, एक सेल से दूसरे सेल में जो भी चीज, आइदर फूड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल एंड वेस्ट प्रोडक्ट, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. राइट?
बट ये सब ट्रांसपोर्टेशन में एक ही फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट है एंड द नेम ऑफ दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ ब्लड। तो उसमें किसका काम है? ऑफ कोर्स ब्लड का ही काम है। फाइन, ब्लड है तो ब्लड विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड हार्ट, ऑफ कोर्स हार्ट जब पंप करता है ब्लड तो ही डेफिनेटली ब्लड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। फाइन, सो व्हाट आई मीन टू से नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स व्हाट कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑल दी बाई प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम दी बॉडी, वो बॉडी में से रिमूव्ड होते, जैसे हम यूरिन है, फिकल मटेरियल है। फाइन, बट यहां हम यूजुअली बात करने वाले हैं यूरिन की। यूरिन जो है वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट लेके वो वाटर कंटेंट में चले जाता है अपनी बॉडी से। फाइन, सो इसमें किडनी का इंपॉर्टेंस है। इस एज फार एज टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हार्ट इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन इनमें लंग्स इन्वॉल्व है, और न्यूट्रिशंस इसमें पूरी अपनी एलिमेंट्री कैनल यानी कि डाइजेस्टिव प्रोसेस इज इन्वॉल्व। फाइन, लेट वी डिस्कस इन दी डायग्रामेटिक एस्पेक्ट सम सुपरफिशियल। एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइन, हम खाना खाते हैं, फिर स्टमक में चला जाता है, फिर व्हाट यू कैन से डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में कुछ प्रोसेस होती है, वो सब डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो पार्ट है उसमें क्या डिस्कस करेंगे? रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन। फाइन, दैट इज बाय द हार्ट। दिस इज हार्ट, ये क्या है? ह्यूमन हार्ट। और हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है ब्लड? ओके, वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके और इसके हम कोऑर्डिनेट करेंगे, दोनों ही सिस्टम वेरी इजी है। केवल और केवल ये चारों डायग्राम्स हमको याद रखनी है सो दैट द प्रोसेस विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ये है एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये चारों प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ब्रीफली तो एक्सप्लेन की है, चलो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। किस लिए जरूरी है भाई? फॉर ग्रोथ and development and to repair the damaged parts of the body and for energy के लिए तो ये सब है। तो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू, फूड मॉलिक्यूल्स लिया, उसके बाद बॉडी ने डाइजेशन किया, यूटिलाइजेशन किया। किस लिए? बिकॉज टू फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड अदर रिपेयर एंड डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी। तीन चीज के लिए न्यूट्रिशंस इंपॉर्टेंट है। एक तो अपनी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड जो भी चीजें अपनी बॉडी में डैमेज हुई है उनको रिपेयर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइन, ऑन अ डे, सिंगल डे वी आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज एंड सो मेनी सेल्स आर गेटिंग डैमेज, तो इट इज नेसेसरी टू रिपेयर ऑल दोज सेल्स। एंड नंबर थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एनर्जी। हम कुछ भी काम करते हैं तो ऑफ कोर्स क्या चाहिए अपनी बॉडी में? एनर्जी, एज सिंपल एज। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। इट मीन्स व्हाट कि जो भी चीज अपनी बॉडी में है न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से सब में क्या है? कार्बन। आप कार्बोहाइड्रेट ले लो, फिर अमाइनो एसिड्स ले लो, प्रोटीन ले लो, सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसके बने होते हैं? कार्बन के। फाइन, ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑलरेडी अवर एनवायरमेंट चैप्टर में हमने थोड़ा बेसिक्स डिस्कस किया था, राइट? कि देर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
Autotrophic nutrition means what? A nutrition in which the organism prepare their food, own food, fine, from carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. तो ऑब्वियसली इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है. द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस. उसको हम क्या बोलने वाले हैं? फोटोसिंथेसिस. डिस्कस करते हैं लेटर ऑन. ओके, बट green plant or some bacteria having chlorophyll, they are involved in the autotrophic mode of nutrition. If I talk about heterotrophic mode of nutrition, definitely organism get their food directly or indirectly from the plant. Means they don't have any ability to synthesize, to prepare their own food. They have to rely on plant, either directly or indirectly. All the animals, fungi and some of the bacteria are involved. If I talk about types of heterotrophic nutrition, जो हमने our environment chapter में भी थोड़ा बहुत बेसिक्स डिस्कस किया था कि which type of heterotrophs are we talking about? Primary consumer, secondary consumer, right? We all know very well. Moreover, what you can say, herbivorous, carnivorous, उस टाइप के. फाइन. यहाँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने 3 अलग अलग टाइप डिस्कस किए हैं. नंबर 1 सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 2 पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो क्या है? लेट अस सी विद दिस पिक्चर. Saprophytes, as you must be familiar with this word because fungi, जब 9th स्टैंडर्ड में हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर लर्न किया था तो वहां पे पहली ही लाइन थी कि फंगाई आर सेप्रोफाइट्स. अगर याद हो तो सेप्रोफाइट्स मीन्स व्हाट? एक ऐसी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑलवेज डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पर ही वो ग्रो होती है. कहाँ ग्रो होती है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे ही वो डेवलप्ड होती है. फाइन. और दे ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट. मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट, राइट, दीज आर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या है? सेप्रोफाइट्स. यू कैन सी दिस इज मोल्ड. ओके. सेकेंड वन इज पैरासाइटिक. ये भी हमने डिस्कस किया था कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड, राइट, दे गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट. ये पैरासाइट्स कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म में घुस के उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, राइट, विदाउट किलिंग देम. उनको मारते नहीं है, उनको मारते नहीं है. हाँ, सेल्स को डैमेज अक्सर करते बट मारते नहीं है. कसकटा ये प्लांट है. ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लाइकेन, राउंडवॉर्म, टैपवॉर्म, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया. तो होस्ट सेल को डैमेज करते हैं बट मारते नहीं है, राइट. सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? कि इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली and digest and absorb. All the unicellular organism comes into this part. Just for an example, amoeba, paramecium, fishes, right? Major means unicellular से शुरुआत की कि unicellular एक सिंगल सेल ही है. अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है तो ऑफ कोर्स वो भी तो क्या करते हैं? डायरेक्टली फूड लेते हैं और अपनी बॉडी में ही वो डाइजेस्ट करते हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं, राइट. तो ह्यूमंस भी तो उसमें आ गए, सारे एनिमल्स भी आ गए. बट व्हाट आई मीन टू व्हाई आई हैव हाईलाइटेड द पॉइंट, बिकॉज शुरुआत कहाँ से हुई? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में 2 ही टाइप के न्यूट्रिशंस दिए हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. बट हेट्रोट्रॉफिक जानना जरूरी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर देयर? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशंस. सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट. ओके,
चलो शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नंबर 1, फर्स्ट सिंथेसिस। प्लांट में बात करनी है तो डेफिनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, आई मीन टू से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic mode of nutrition. It is the process by which plant prepare the food. Already आगे definition discuss की, plant prepare the food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. 4 things are required. Number 1, CO2, fine. Number 2, water. Number 3, sunlight. And number 4, chlorophyll. Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. The food is called as a carbohydrate, simple sugar, which is stored in form of a starch. वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ अ स्टार्च। ओके, चलो इक्वेशन याद रखना है। सो एज फार एज शॉर्ट नोट इज कंसर्न, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो उसमें डेफिनेशन, फिर ये इक्वेशन 6CO2 प्लस 12H2O, इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये इक्वेशन याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है एंड क्लोरोफिल है। क्या बनता है? ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट, I mean to say glucose, but glucose is simple sugar, so it is definitely converted into starch. वो याद रखना है। ग्रीन प्लांट्स जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट बनता है। एक साथ बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स आ गए, अब उनका कन्वर्जन किस में होगा? स्टार्च में। किस में होगा? स्टार्च में। ह्यूमंस की अगर बात करें, हम अगर शुगर मॉलिक्यूल्स लेते हैं खाना खाने से, उसके बाद क्या होता है? अपनी बॉडी में शुगर मॉलिक्यूल्स है वो स्टोर होता है, बट दैट इज स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन एंड नॉट द स्टार्च। वो अपनी बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में नहीं स्टोर होता है, जबकि प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। चलो 3 सिंपल स्टेप डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फाइन, सबसे पहले प्लांट क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल सन रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करते हैं। विच एनर्जी? लाइट एनर्जी। स्टेप नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे बताया था कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय, उनका एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्जन ही होता है। सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड उसी स्टेप में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और किस में कन्वर्जन होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही डेफिनेशन है। चलो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इनका क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। देखो हाइड्रोजन ऐड हो गए, फाइन, ओके, हाइड्रोजन ऐड हुए, मोर ओवर 6 दूजाने 12 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6, तो 12 में से 6 ऑक्सीजन चले गए, तो अगेन इट इज द रिडक्शन। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डेफिनेशन, प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर द फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यू कैन से यूवी रेडिएशन एंड क्लोरोफिल। ओके, किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में? स्टार्च के फॉर्म में। इक्वेशन इज वेरी इजी एंड स्टेप्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इजी। फर्स्ट स्टेप ये याद रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स into hydrogen and oxygen. Number 3, reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate. Okay, so this is just introductory lecture. Next time we will see the evidence how
each component is required. What is the role of carbon dioxide? What is the role of sunlight? What is the role of chlorophyll? क्यों ये चाहिए as far as photosynthesis process is concerned? टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है. वी विल गो एंड डिस्कस इन डिटेल. So just for understanding purpose, just we can see one video how autotrophic nutrition works and what is the actual process of photosynthesis. Autotrophic nutrition. Green plants are called autotrophs because they can make their own food. This mode of nutrition is called as autotrophic nutrition. Majority of plants are green because they possess a green coloring pigment called chlorophyll. It is found in organelles called chloroplast present in the cells of green plants. Let us understand the importance of chlorophyll in plants. Chlorophyll helps the plants to make their own food in the presence of sunlight, using water and dissolved minerals absorbed from the soil through their root hairs and carbon dioxide from the air through their leaves. This process of making food by green plants is known as photosynthesis. Let us take a look at the importance of photosynthesis. Photosynthesis helps to make food for plant. It is the primary source of food for all other living organisms in the world. And it maintains the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. The conditions necessary for photosynthesis are sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water. Here are some activities to show that the above conditions are necessary for photosynthesis. So next time we will discuss all these three steps: the importance of chlorophyll, importance of sunlight, and importance of carbon dioxide. Thank you.